Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of data structure and algorithm, we started our first unit. Okay, so first unit is based on introduction part where we already discuss about what is mean by data structure, what is mean by algorithm also. Okay, so in this video we discuss about the algorithm complexities and the analysis of time complexity. Okay, so first is the algorithm complexity. So the performance of an algorithm, it can be measured in two factors. Okay. So if I am writing the algorithm for addition of two numbers, okay. So for that we require the three variables. Okay. So first two variables we have to add. If I am considering the three variables like A, B and C, and I want to store the 10 value in variable A, 20 value in variable B. Okay, so A is equal to 10 and B is equal to 20. So for the addition of two numbers, the result is what? C is equal to A plus B, that is C is equal to 10 plus 20. So we get the C is equal to 30. Okay, so this is the simple algorithm for the addition of two numbers. So for that particular algorithm, we have to calculate the complexity. How much time required for that particular algorithm and how much space is allocated for that particular algorithm. Okay, so that means the performance of an algorithm can be measured in two factors, that is time complexity and the second one is the space complexity. Okay, so first we discuss about the time complexity. The running time or the execution time of an operations of a data structure must be small as possible. So time is measured by counting the number of keys operations such as comparison in sorting algorithms. So time complexity of an algorithm is the amount of time required to complete the execution. So the time complexity of an algorithm is denoted by big O of O notations. Okay, so in the next video we discuss about this notation, what is mean by big O notation, what is mean by omega notation and what is mean by theta notation. Okay, so time complexity is measured in big O notations. Okay, so here the big O notation is the asymptotic notation. So this notation is called as a asymptotic notations to represent the time complexity. So time complexity is mainly calculated by counting the number of steps to finish the execution. Okay, so let us understand the time complexity through this example. Suppose here the sum is equal to 0. Suppose we have to calculate the sum of n numbers. Okay, so for I equal to 1 to n, where we are having the n numbers. So sum is equal to sum plus I. That is when the loop ends, then sum holds the sum of n numbers. Okay. So here loop starting from I equal to 1. If I am considering the n is equal to 5. So I equal to 1, then 2, 3, 4, 5. So we are adding all these values from 1 to 5. So total sum is equal to sum plus I and return the sum. So in this code, the time complexity of the loop statement will be at least n number of times the for loop is executed. And if the value of n increases 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, then the time complexity is also increases. So while the complexity of the code that is written, the sum will be constant as its value is not dependent on the value of n, and it will be provide the result in one step only, that is sum. So we generally consider the worst time complexity as it is the maximum time taken for any given input side. So this is the time complexity. Second is the space complexity. Memory uses of a data structure operation should be as little as possible. So for an algorithm, the space is required for the following purpose. So here to store the program instructions, to store the constant values, to store the variables, to track the function calls, jumping statement, etc.
Okay, so space complexity means what? As I said, the algorithm for addition of two numbers where we are using the three variables like a, b, c. So a is storing the value that is 10, b store the values 20. So for this variable values 10 and 20, how much space is required in the memory? So this called as a space complexity. How much memory uses for that particular variable. So the space measured by counting the maximum memory space required by the algorithm. So what is mean by auxiliary space here? So the extra space required by the algorithm excluding the input size, it is known as the auxiliary space. So the space complexity consider the both the spaces, that is auxiliary space also and the space used by the input size also. So the space complexity is equal to auxiliary space plus input size. Okay, so this is the space complexity. Next is the analysis of time complexity. How to analyze time complexity for that particular algorithm. So running time depends many factors, but we compute it based on the input size. Okay. So here I am considering the n is equal to 5. So based on the input size, we are find out the time complexity. So first, for the analysis of time complexity, first we have to assume the two things. First is what? All arithmetic, logical and assignment operator taking the 1 unit of time. Okay, I am considering here जितने भी arithmetic operations है plus, minus, negative, sorry, addition, subtraction, multiplication, division, positive sign, negative sign, logical operators, that is and operator or operators, assignment operators, equal to sign operators taking the 1 unit of time. I am considering 1 unit here, and all the return statement taking the 1 unit of time also. Return statement means what? Here I am returning the value sum. जितनी भी total sum होगी from I equal to 1 to 5, so we are returning here sum. So जितने भी return statement होंगे उसके लिए हम consider करेंगे 1 unit of time also. Okay. So for the analysis of time complexity, first is the example of constant time. Okay, अगर हमारे पास एक algorithm है, एक code है जिसके अंदर constant time दिया है. Okay, so here the example is integer sum of number a comma b. Okay, हमारे पास दो numbers है, उसकी sum हमें करनी है. So if I am considering a is equal to 10, b is equal to 20, so integer c is what? 10 plus 20, that is c, that is 30. So 30 return is what? 30. So यहाँ पे हमने कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू साइन एंड द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, सो यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अरिथमेटिक, उसके लिए लगेगा 1 unit ऑफ टाइम, एंड हमने एक ऑपरेटर असाइन किया है यहाँ पे इक्वल टू साइन. जो भी रिजल्ट आएगा वो हम सी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, दैट इज 30. सो 1 plus 1, that is first operator is equal to second operator is arithmetic operator, that is plus. So 1 plus 1 is equal to 2 unit of time is required for this line. Then next is a return c. जो भी रिजल्ट मिलेगा हमें c is equal to 30, वो हमने किस में स्टोर किया है? c वेरिएबल में, जो कि हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा c is equal to 30. सो इसके लिए लगेगा 1 unit of time. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे assumptions बताए थे, जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल होंगे उसके लिए 1 unit कंसिडर करो, और रिटर्न स्टेटमेंट होंगे उसके लिए 1 unit ऑफ टाइम कंसिडर करो. सो 1 plus 1 is 2 एंड रिटर्न के लिए 1. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 plus 1 is equal to 3 unit ऑफ टाइम. सो जितने भी कांस्टेंट होंगे एग्जांपल्स उसके लिए 3 unit ऑफ टाइम लगेगा. सो इट मींस कांस्टेंट यूनिट ऑफ टाइम. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज अ लीनियर टाइम. सो अगर हमारे पास सम ऑफ एरे है, ओके, दो नंबर्स के एडिशन है, सो उसके लिए बस इतना ही होगा. देन इंटीजर सम ऑफ एरे, इसके अंदर हमारे पास एक एरे गिवन है और n. सो n इज व्हाट? द साइज ऑफ एरे. इफ आई एम कंसिडरिंग द साइज इज 5 एंड एरे होगा 10, 20, 30, 40, 50. सो हमें टोटल सम करनी है. सो 10 plus 20 that is 30, 30 plus 30 60, 60 plus 40, okay, 60
60 प्लस 40 इज वॉट 100 एंड 100 प्लस 50 कितना होगा 150. सो 10 20 30 40 प्लस 50 उनकी एडिशन हमें रिटर्न करनी है. सम इज इक्वल टू 150. सो इंटीजर सम इज इक्वल टू 0. सो इसके लिए देखो यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है. सो टोटल यूनिट ऑफ टाइम कितना लगेगा 1 यूनिट. देन इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस. सो यहाँ पे कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम. इक्वल टू साइन ग्रेटर देन नहीं होगा, ओनली इक्वल टू साइन एंड प्लस प्लस. यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो कितनी कॉस्ट लगेगी 1 + 1 दैट इज 2. देन सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i. तो यहाँ पे अगेन एडिशन ऑपरेशन है और असाइनमेंट इक्वल टू साइन है. सो उसके लिए टाइम लगेगा 2, दैट इज 1 + 1 इज इक्वल टू 2. रिटर्न सम दैट इज 1. टोटल कॉस्ट इज व्हाट हियर 1. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम वो एग्जीक्यूट कर रहा है. ओके, सो सम इज इक्वल टू 0, ओनली 1 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है. सो 1 आएगा यहाँ पे. ये जो फॉर लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है. अगर 5 है सो 0 1 2 3 4 तक ही वो एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज 4 इज लेस देन 5 तक, बस वहां तक ही हमें कंडीशन चेक करनी है. सो कितने टाइम्स वो एग्जीक्यूट करेगा n टाइम्स. +1 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि देखो 0 है, i इक्वल टू 0. सो हम क्या करेंगे 0 प्लस a ऑफ 0 सम आएगी. सो ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ. देन i प्लस प्लस 1 करेंगे, देन कितना आएगा वो 1. 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू. देन सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करेगा. देन 2 के लिए चेक करेंगे. i प्लस प्लस कितना आएगा 2. 2 इज लेस देन 4, सॉरी 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू. थर्ड टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा. देन i प्लस प्लस करके कितना आएगा 3. 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू. कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा 4 टाइम एग्जीक्यूट करेगा. देन i इज इक्वल टू 4. 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू. वो 5th टाइम एग्जीक्यूट करेगा. देन हम अगेन चेक कर रहे हैं 5 के लिए. ओके, सो i प्लस प्लस करके हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 5. 5 इज लेस देन 5. यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ रही है, बट कंडीशन तो चेक हो रही है. टाइम तो लगेगा हमें i प्लस प्लस करने के बाद. ओके, सो टोटल n कितना है हमारे पास 5 + 1. सो हम यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, बट उसके लिए भी यहाँ पे हमें टाइम तो रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, सो हम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आएगा यहाँ पे n + 1. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i. सो यहाँ पे 2 कॉस्ट लगेगी, बस कितने के लिए n के लिए, नॉट n + 1. यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है. सो बस ये n टाइम में एग्जीक्यूट करेगा. a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड a ऑफ 4. टोटल कितने टाइम्स वो a ऑफ i को कॉल कर रहा है 5 टाइम्स ही कॉल कर रहा है. दैट मीन्स n एंड रिटर्न ओनली 1. सो नंबर ऑफ टाइम्स ये बस एक टाइम ही एग्जीक्यूट करेगा. सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज उसका मल्टीप्लीकेशन. 1 × 1 प्लस 2 × n + 1 प्लस 2 × n प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा. सो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पे 4n + 4. सो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है 4n + 4 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है लीनियर के लिए. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर टाइम. सो फर्स्ट क्या था हमारा कांस्टेंट यूनिट ऑफ टाइम. जितने भी वैल्यूज होंगे वो कांस्टेंट वैल्यू शो करेंगे, उसके अंदर हम कोई भी लूपिंग यूज नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हमने लूपिंग यूज किया है जिसका रिजल्ट मिलेगा हमें लीनियर टाइम 4n + 4. ओके, तो रिजल्ट इज व्हाट, अगर हमारे पास टाइम है n के लिए, n नंबर ऑफ के लिए हम अगर हम चेक कर रहे हैं तो टोटल 3 यूनिट लगेंगे कांस्टेंट बिग ऑफ 1. ओके, सी हियर यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिली है. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ऑफ 1. नेक्स्ट इज अ टाइम फॉर सम ऑफ एरे, जिसके अंदर हमें लीनियरली मिल रहा है डेटा 4n + 4. सो लीनियर के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ऑफ n. देन मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, सो सेम अगर मैट्रिक्स का अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते तो नॉर्मली अगर हम एरे की सम करते तो हमें एक ही फॉर लूप लगेंगे, बट मैट्रिक्स फॉर्म में हमें कितने फॉर लूप लगते हैं 2 फॉर लूप लगते हैं. i इज फॉर रोज एंड j इज फॉर कॉलम. सो रो कॉलम वाइज हमें अगर चेक करना है i j, देन अगेन i j अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी a. सो यहाँ पे एक कांस्टेंट है a
n square plus another constant है b n plus c. So this is the equation for the matrix multiplication. So in that case the time complexity is what? So यहाँ पे large क्या है 4n और ये क्या है constant है. So big of n हो जाएगा. यहाँ पे n square then n और constant है. So maximum क्या है इसमें n square. So big of n square is the time complexity for the matrix multiplication. Big of n is the time complexity for the sum of array and big of 1 is the time complexity for the only addition of two numbers. Okay, so this is the concept of analysis of time complexity. Next is the general rule for time complexity. What are the rules are generated for time complexity if you are having the only one loop? Okay, only one loop अगर आता है like this, यहाँ पे ओनली वन ही लूप मिला है हमें. सो ये हमें लीनियर टाइम मिला, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ऑफ एन. सिमिलरली हियर ऑल्सो जनरल रूल्स क्या होंगे, अगर हमारे पास एक ही लूप है तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा, एन टाइम एग्जीक्यूट करेगा एंड कांस्टेंट टाइम क्या होगा उसका 1+1 एडिशन और इक्वल टू के लिए 2 यूनिट. सो 2n. ओके, कांस्टेंट इज व्हाट c. कांस्टेंट वैल्यू को हमने अज्यूम किया है cn. cn टाइम एग्जीक्यूट करेगा मींस बिग ऑफ n टाइम एग्जीक्यूट करेगा. देन नेस्टेड लूप, फॉर के अंदर अगर और एक फॉर लूप आता है लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था, दो लूप फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे. यहाँ पे अंदर आई एक फॉर लूप होगा, उसके अंदर और एक जे एक फॉर लूप होगा. ओके, तो यहाँ पे आई ही यूज किया, हम जे भी यूज कर सकते हैं. नेस्टेड लूप उसको बोलते हैं फॉर के अंदर और एक फॉर लूप होता है. तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा एन टाइम. इसके अंदर एक और एक फॉर लूप है, वो कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा एन टाइम. दैट मीन्स व्हाट हियर एन स्क्वायर टाइम वो एग्जीक्यूट होगा एंड इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज क्या है प्लस और इक्वल टू, दैट इज 1+1 इज इक्वल टू 2. सो इसका इक्वेशन क्या होगा, दो कांस्टेंट वैल्यूज है c और n स्क्वायर, दैट इज n into n into c, that is cn square. So उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी big of n square. Next, consecutive statement. Okay, तो consecutive statement means what, यहाँ पर nested के अंदर क्या था, for के अंदर एक for loop था which is called as a nested loop. And consecutive statement means what, एक for loop के ऊपर एक हमारे पास statement है a is equal to a plus b. So this is a constant. So अभी आप लोगों को पता चला होगा अगर हम दो नंबर्स के एडिशन कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है 1+1 दैट इज 2. सो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कांस्टेंट वैल्यू c1. देन एक अनदर फॉर लूप है जिसके वो एग्जीक्यूट कर रहा है, n टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके अंदर और एक एडिशन है 1+1 इज इक्वल टू 2. इसको हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है c2. सो ये फॉर लूप इसके अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है. सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा nc2. देन अनदर फॉर लूप है, नेस्टेड नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव है. सो n टाइम एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर हमने और एक एडिशन की है विच इज कॉल्ड एज 1+1 दैट इज 2. कांस्टेंट नंबर इज c3. सो ये फॉर लूप है पूरा. सो n टाइम एग्जीक्यूट करेगा कांस्टेंट c3 के लिए. सो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे nc3. सो टोटल जो कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट है उसकी एडिशन क्या होगी अभी, c1 प्लस nc2 प्लस nc3. सो टोटल इज व्हाट हियर c1 प्लस nc2 प्लस nc3. सो इसमें से कॉमन कौन सा है n. c1 प्लस c2 प्लस c3 इन ब्रैकेट देन n. सो जो c1 है ये कांस्टेंट है और c2 और c3 को मिला के हमने और एक कांस्टेंट बनाया है c2 डैश. सो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, c1 मैक्सिमम है या c2 डैश n मैक्सिमम है. सो ऑब्वियसली n इज द मैक्सिमम. सो आई एम राइटिंग हियर द बिग ऑफ n. तो जो भी कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n. जितने भी नेस्टेड लूप टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n स्क्वायर और जो भी लूप होता है नॉर्मली उसका होगा बिग ऑफ n. तो नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट. अगर हमारे एल्गोरिथम के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स आते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर करेंगे हम. सो इफ कंडीशन, यहाँ पे एक फॉर लूप है, फॉर लूप की नॉर्मल फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बिग ऑफ n. ये होगा बिग ऑफ n. एल्स स्टेटमेंट के अंदर है हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप, अगर हम नेस्टेड फॉर लूप कंसीडर करते हैं सो बिग ऑफ n स्क्वायर. ओके, सो बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस
इफ एल्स स्टेटमेंट। सो यहाँ पे बस मैंने कंसिडर किया है फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पे हम नॉर्मली कांस्टेंट वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। सो क्या आएगा यहाँ पे c प्लस बिग ऑफ n स्क्वायर, ओके, लाइक दिस। द नेक्स्ट इज अ लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। सो यहाँ पे एक फॉर लूप दिया है i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n। सो इफ आई एम कंसिडरिंग द n इज इक्वल टू 5, ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो हमें कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है, आप इसको 5 तक ही एग्जीक्यूट करना है। सो 1 इंटू 2 दैट इज 1 इंटू 2, सो यहाँ पे मिलेगा 2, देन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। कहाँ तक हम एग्जीक्यूट करना है, ओनली 5 नंबर तक ही, ओके। सो 1 2 3 4 5, ओनली 5 नंबर्स को ही वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, लॉग टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, लॉग ऑफ n, ओके। n अगर 5 है सो लॉग ऑफ 5, n अगर 10 है सो लॉग ऑफ 10। सो ये होगा हमारा लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। मीन्स यहाँ पे हमें सीरीज मिल रही है 1 2 4 8 16, देन 16 इंटू 2 32, 32 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद आएगा 256, 256 के बाद आएगा 512। तो यहाँ पे हमें सीरीज मिल रही है। सो इन दैट केस वी आर यूजिंग द लॉग फंक्शन हियर। कितने टाइम्स, n टाइम्स। n अगर 5 है सो ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, n अगर 6 है सो यहाँ पे 16 के बाद आएगा 32, ओके, 6 टाइम्स ही वो प्रिंट करेगा, ओके। सो log n, सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, big of log n। सो दिस इज द logarithmic complexity. So how we can measure which time complexity is better, ओके। सो जितना लेस टाइम लगेगा, जितना कम टाइम लगेगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगी, ओके। ऑब्वियसली अगर हम कोई भी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं जिसको कम टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन के लिए, वो हमारा बेटर एल्गोरिथम होगा, ओके। सो लेस टाइम बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। सो इसके अंदर देखो बिग ऑफ 1 के लिए लेस देन बिग ऑफ log n, देन लेस देन बिग ऑफ n, लेस देन बिग ऑफ n log n, लेस देन बिग ऑफ n स्क्वायर। जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज है उसके लिए कम टाइम लगेगा, सो दिस इज अ बेटर। बिग ऑफ log n बस वो एक टाइम में एग्जीक्यूट करके दे रहा है, सो दिस इज ऑल्सो बेटर। उससे ज्यादा क्या है, बिग ऑफ n मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं या फिर ओके ओनली वन लूप यूज कर रहे हैं या फिर कॉन्जिक्यूटिव लूप यूज कर रहे हैं। सो फॉर दैट बिग ऑफ n, n log n मीन्स व्हाट, n कब आता है यहाँ पे, अगर फॉर लूप के ऊपर और एक लूपिंग है, सो इन दैट केस वी आर यूजिंग द n log n, ओके। एंड बिग ऑफ n स्क्वायर के लिए ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली नेस्टिंग लूप में चेक कर रहे हैं हर एक कंडीशन को, सो इट विल टेक मोर टाइम। जितना कम टाइम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगी, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट जनरल रूल्स फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट इज व्हाट, लूप, देन नेस्टेड लूप, लूप की कितनी होगी, बिग ऑफ n, नेस्टेड लूप की होगी बिग ऑफ n स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट की बिग ऑफ n, इफ एल्स स्टेटमेंट बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n स्क्वायर। सो ये चेंज भी हो सकता है, इफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी कंडीशंस आ सकती है हमारे पास, ओके। लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के लिए log n और n log n भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट जनरल रूल्स फॉर मेजरिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।